Okay, good morning, all of you. This is Vipul, and we are discussing about correlation, coefficient of correlation. In a previous session, we had gone through a formula of coefficient of correlation, which is provided by Carl Pearson. The first mathematical method to identify the coefficient of correlation. We all know that the coefficient of correlation R is having a range from 0 to 1. Is it? Is it? Is it? Is it 0 to 1? Is it? No, sir. It should be -1 to 1. One. If R is having a value -1, then the correlation between x and y is perfect negative. If R is equals to +1, then the correlation between x and y is perfect positive. Agar R की value, if it is from 0 to 1, then we may say that both the variables are partially positive. Both the variables are having partial positive correlation. And if it is from -1 to 0, then we may conclude that both the variables are having partial negative correlation. Is it? Or we were having one of the simplest formula for the correlation, that is covariance of xy divided by standard deviation of x into standard deviation of y. Is it? And इसको हमने सिंप्लीफाई किया था, दो फॉर्मूला मिली थी. सिंप्लीफाई करने के बाद both were just a modification, just a kind of modification in this formula, is it? And using one of them, एक फॉर्मूला हमने ये वाली यूज की थी, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाय एन all divided by under root of terms related to x terms related to y. ये वाली एक फॉर्मूला यूज करके हमने इन दोनों वेरिएबल x और y के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आइडेंटिफाई किया था. और वहां पे हमने बात ये भी की थी कि कोई भी फॉर्मूला यूज करें, ये वाली या फिर दूसरी वाली जो कि कुछ इस तरीके से दिख रही थी, सिग्मा एक्स वाई एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ टर्म्स रिलेटेड टू एक्स टर्म. दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करें, आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, विल बी ऑलवेज सेम, बिकॉज ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने से ये फॉर्मूला मिल रही है, इसको थोड़ा सा ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे देन ये वाली फॉर्मूला है. सो बात ये थी कि यू मे चूज योर फॉर्मूला whether you wish to deal with this, others depends on you. आप डिसाइड करेंगे, कोई भी फॉर्मूला यूज करें, वैल्यू सेम मिल रही है. सो वी आर डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. लेट मी गो थ्रू द सेकंड वन. ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं. और एक बात देखिए, यहाँ पे लास्ट एक नोट लिखी थी मैंने. Go through this. Sigma x, sigma y, sigma x square, sigma y square, and sigma xy can be directly obtained with the help of scientific calculator. You may obtain these values directly by entering this data, both this data in the scientific calculator. And scientific calculator usually we guys are using that Casio. Is it 82 ms? ये वाला यहाँ तक का मॉडल that is approved and in any of the examination. So वो कैलकुलेटर अगर आपको ठीक से यूज करना आता है ना, then you may obtain all these values. Observe this: sigma x, sigma y, sigma x square, sigma y square, sigma xy. ये टेबल के बिना भी आप directly वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं with the use of scientific calci. Now I'm not sure कि all of you are that much comfortable with all the functions related to that 82 ms model. अगर नहीं पता है आपको, if you are not comfortable, उसमें उसको ठीक से यूज करना नहीं आता, then I will explain कि भाई ये डायरेक्टली कैसे मिल सकते हैं, how we may enter this bivariate data in the calci में वो bivariate data एंटर करना होता है. 2,18 को एंटर करके फिर हम एंटर करेंगे 4,12, 5,10, 6,8. So if you are not comfortable, then I will explain how you may use your scientific calci properly, कि ताकि ये सारा
समेशन जो है ना, ये सारे नंबर्स जो है वो बहुत इजीली आप वेरीफाई कर पाएंगे कि आपने यहाँ पे कहीं गलती की है कि नहीं की है, टोटल में कोई गलती की है या ये स्क्वायर करने में कोई गलती की है, मल्टीप्लिकेशन करने में कोई गलती की है कि नहीं की है. वी मे इजीली वेरीफाई दैट यूजिंग द साइंटिफिक कैलकुलस. सो वो एक बार बता दूंगा मैं आपको, ठीक है. पर अभी आगे बढ़ते हैं. Let's go for the second example. Once again, we are supposed to find the coefficient of correlation between variable x and y, and this is the data x and y. Now, पहले मुझे ये वेरीफाई करके बताओ, ये थोड़ा ऑब्जर्व करके बताओ कि इन दोनों बीच, इन ये दोनों वेरिएबल x एंड y, इन दोनों के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा r, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी. हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट, वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द डेटा. जस्ट ऑब्जर्व x इज इन द असेंडिंग मोड, इज इट इंक्रीज हो रहा है 5, फिर 9, फिर 13, 17, 21, and respectively the value of y is also increasing, 12, 20, 25, 33, 35. So as x increase, y is also in the increasing mode. So both the variables are moving in same direction. Both the variables are moving in same direction. Give me one. Both the variables are moving in same direction. If both the variables are moving in same direction, then we may easily conclude that the correlation between x and y will be positive. Will be positive. अब ये पता है कि r की वैल्यू पॉजिटिव होगी, पर क्या r की वैल्यू एग्जैक्टली +1 होगी? Is it possible that r is having a value +1 for this example? वो भी आप बहुत ही आसानी से जज कर पाओगे. देखिए, for that you need to just observe the ratio. Ratio for the first observation is 5/12. For the second observation is 9/20. Now 9/20, 5/12, both these are not same. Both these are different. तो रेशियो कांस्टेंट नहीं, ये कंक्लूड हो चुका है. कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव है, वो भी कंफर्म है. मतलब कि एक बात फिक्स है कि इस क्वेश्चन के लिए r की वैल्यू क्या होगी? 0 से बड़ी और 1 से छोटी. So value of r will be between 0 to 1. Surely, is it? Now let's fix a formula. कि कौन सी फॉर्मूला से काम करेंगे? क्या लगता है आपको? क्या आप जो बोले वो फॉर्मूला से हम डील करते हैं. चलिए बताइए मुझे कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी है. 2 फॉर्मूला हमारे पास, कोई बता पाएगा मुझे वो 2 फॉर्मूला कौन सी है? It will be good if one of you will unmute yourself and let me know. Let's decide, let's fix our formula कि जिससे ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. चलिए, कौन बताएगा मुझे? अंजलि, are you there? Yes, sir. Yes बेटा. दोनों फॉर्मूला तुझे याद है कि नहीं याद है? हाँ सर, याद है. चल ठीक है, पहली वाली बता दे, या तो कोई एक बता दे जिससे कि काम करना है. सर, एक जो अभी आपने करवाया था, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा ऑफ एक्स इंटू सिग्मा ऑफ वाई अपॉन अंडर रूट करके सर सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस Upon under root होल sigma x square minus sigma x the whole square का होल स्क्वायर divide अपॉन एन इंटू अंडर रूट ऑफ सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस होल सिग्मा वाई का स्क्वायर अपॉन एन. by. Is it? So let's fix. Okay, we are gonna solve this particular question with this formula. ठीक है. अब इससे अगर सॉल्व करना है तो पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सा डेटा चाहिए हमको. इज इट? चल, क्या क्या चाहिए होगा हमको रॉ मटेरियल में? सिग्मा एक्स चाहिए होगा. इज इट? फर्स्ट, सेकेंड, we will be in need of sigma y. Third, we will be in need of product of both that, sigma xy. Here it is, here it is. Is it? Then और 2 डेटा चाहिए होंगे. क्या है बेटा वो? सिग्मा एक्स स्क्वायर. सिग्मा एक्स स्क्वायर का होल यस, स्क्वायर और वो यहाँ पे चाहिए, और सिग्मा वाई स्क्वायर यहाँ से चाहिए. सिग्मा वाई स्क्वायर. इज इट? सो दिस आर द 5, ये 5 डेटा हमको चाहिए होगा. ठीक है. सो कोई भी क्वेश्चन आप देखें कोरिलेशन का, सो सबसे पहले आप फिक्स करेंगे अपनी फॉर्मूला कि यस भाई हम इस फॉर्मूला से काम करने वाले. अब उसके लिए इतने सारे डेटा चाहिए हमको, और एक भी टर्म चाहिए होगा, दैट इज एन. अंजलि, एन भी चाहिए होगा. चल डिसाइड कैसे करेंगे बेटा? एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? सर 5. कैसे डिसाइड किया बेटा? दिस इज द फर्स्ट डेटा सेट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. इज इट? सो 5 ऑब्जर्वेशन है मेरे पास, तो एन की वैल्यू फिक्स हो गई 5 तक.
अब ये सारे डेटा, तो यहां से पता चलेगा तुझे कि भाई तेरा जो टेबल है ना उसमें कौन कौन सी कॉलम आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एंड वाई आप रिप्रेजेंट करेंगे वर्टिकली, सॉरी। देन इन दोनों का टोटल जो आएगा, एक्स वाली सीरीज का टोटल जो आएगा, इसमें कैसे डेटा एंटर करेंगे, 5,12 जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इट शुड बी हियर 5,12, सेकेंड ऑब्जर्वेशन शुड बी 9,20 लाइक दिस, इज इट। यहाँ पे सारे डेटा यहाँ पे हम एंटर करेंगे। इसका जो टोटल होगा उसको बोलेंगे हम सिग्मा एक्स, इसका टोटल बोलेंगे सिग्मा वाई। सो दो after that we are in need of summation of x into y, is it? So अब यहाँ पे ऑर्डर तू डिसाइड कैसे, इसमें कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है कि पहले एक्स वाई करना है फिर एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर। ऑर्डर आप डिसाइड करो कौन सा पहला करना है, पहले एक्स इंटू वाई करना है, वी आर गुड विद दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर प्रोडक्ट ऑफ बोथ दैट, 5 12 इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, 5 into 12 5 into 12, is it 60, 9 multiplied by 20 180 like this, is it? इन सभी का टोटल करेंगे उसको हम बोलेंगे सिग्मा एक्स वाई। देन विल प्रोसीड फॉर एक्स स्क्वायर, वी आर इन नीड ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर देन समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। सो एक्स वाले कॉलम का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, 5 the square 25, 9 the square 81 लाइक दैट। जितने भी उसका जो समेशन, उसका जो टोटल आ रहा है उसको हम बोलेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर। एक बात मैंने लास्ट टाइम भी बोली थी, सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर ये दोनों अलग है, इज इट? बोथ दिस आर टोटली डिफरेंट, बोथ दिस आर टोटली डिफरेंट, ये दोनों अलग ही है। सिमिलरली वाई स्क्वायर, वाई वाले जो भी वाई सीरीज में जो भी नंबर्स है उसका स्क्वायर करके, मान कि 12 का स्क्वायर इट इज 144, लाइकवाइज जो भी है that will be known as sigma y square, and we may identify all that observations from here, is it? And replacing all that in the formula, we may have a value of coefficient of correlation that is known as r. So इतनी छोटी सी बात है, is it? अब पहले बताना है कि कितनों को ये बात समझ में आई जल्दी से। Let me know quickly, let me know how many of you are comfortable with this, is it? उसके बाद मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको कैसे किया है मैंने। Okay, let me give you the solution. देखिए अब मैंने ये किया है दूसरी वाली फॉर्मूला से। I solve this particular example with the second formula. अब सेकंड फॉर्मूला से अगर करना है तो सेकंड फॉर्मूला क्या थी अंजलि? The second formula was like that, r is equals to sigma x minus x bar y minus y bar divided by under root of sigma x minus x bar the square and sigma y minus y bar the square। जैसे कि मैंने बताया कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करें आप, ये वाली करें या पिछली वाली करें, we are good with that. Now, if you wish to proceed with this particular formula, then you must have your arithmetic mean for both the series, is it? For the first series x bar, the arithmetic mean will be labeled as x bar. For the first series x, arithmetic mean will be labeled as x bar. y वाली सीरीज के लिए arithmetic mean को हम y bar बोलेंगे। उसकी फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, पता है सभी को। x bar means sigma x divided by n, y bar means sigma y divided by n. So after evaluating x bar and y bar, we will focus on this formula। क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होगा इस फॉर्मूला से काम करना है, तो रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का मल्टीप्लीकेशन और उसका टोटल चाहिए, इज इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो फॉर x माइनस एक्स बार, वही फर्स्ट दो कॉलम वही है। देखिए जो थी हमारे लास्ट वाले मेथड में, ये क्वेश्चन हम दोनों मेथड से सीख रहे हैं, ठीक है? सो x y दोनों रिप्रेजेंट कर दिया मैंने वर्टिकली। अब x minus x bar, I must have x bar. So x bar मुझे पता है x bar is 13. क्यों 13? क्योंकि sigma x is 65 divided by number of observation is 5. So 65 divided by 5 will leads to 13. Now once I am having the value of x bar, then I will proceed with this particular table, x minus x bar मानी कि 13. So I need to subtract 13 from each and every observation
ऑफ द सीरीज y वाली सीरीज के हर एक ऑब्जर्वेशन को 13 में से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, सॉरी उसको 13 को उसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा, इज इट? सो ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 5 minus 13, नाउ ऑब्जर्व, this is x minus 13, मानी कि 5 minus 13, 5 minus 13 is minus 8, 9 minus 13 is minus 4, 13 minus 13 is 0, 17 minus 13 is 4, and similarly 21 minus 13 is 8. That's it. And similarly we will proceed for y minus y bar. Y bar is 25. Y bar sigma y divided by n. 125 divided by 5 leads to 25. So y bar की वैल्यू 25 होगी. So यहाँ पे हम देखेंगे y minus 25. तो y वाली सीरीज में जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, we will subtract all of them from with 25. So 12 minus 25 will leads to minus 13. Similarly 20 minus 25 minus 5, 25 minus 25 is 0, and likewise 35 minus 25 is 10. But याद रखना है इन दोनों कॉलम का कोई रोल नहीं है. The total of both this column will be always 0. Total of both this column will be always 0. Why? Because what is this? Both these are the deviation taken from the actual mean. Both these are the deviation taken from the actual mean, and we all know that deviation taken from the actual mean is always 0. It is quite basic terms, basic information from our maths, from our statistic, is it? That if we are looking for the deviation taken from the actual mean, then it will be always 0, is it? So इन दोनों का कोई रोल है ही नहीं. आपको लग रहा है कि सर इस वैल्यू को मुझे यहाँ पे रिप्लेस करना है, यहाँ पे ना, ये वैल्यू अलग है, ये टर्म ही अलग है. What is this? This is product of both this, product of x minus x bar with y minus y bar. So हमारे पास ये दो जो कॉलम है, let me erase some of the unwanted stuff. Yes, हमारे पास ये दोनों जो कॉलम से हम उसका करेंगे प्रोडक्ट. I'm gonna multiply both of them और उसको कोई कॉलम में मैं डालूंगा. देखिए यहाँ पे -8 into -13 is leads to 104. 0 into 0 gives you 0. 8 into 10 gives you 80. Is it like that? Is it? तो हमको जो काम है वो उसी का है. Summation x minus x bar into y minus y bar. So take care for that. ये दो टोटल आपकी फॉर्मूला में कहीं पे उसकी कहीं पे जरूरत ही नहीं है. तो ज्यादातर बच्चे इसी पे गलती करती है when they are opting the first formula. जब वो फर्स्ट फॉर्मूला से कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ज्यादातर यहाँ पे गलती करते हैं कि x minus x bar y minus y bar तो सर 0 है, तो फॉर्मूला में उसको डालूंगा, r की वैल्यू 0 ही मिलेगी. नहीं, ऐसा नहीं है. सो टेक केयर फॉर दैट. इज इट? इसका कहीं पे यूज है ही नहीं इन दोनों वैल्यू का हमारी कोई फॉर्मूला में. तो हमको चाहिए क्या? वी आर लुकिंग फॉर समेशन x minus x bar द होल स्क्वायर. तो फिर से जैसे कि अगली बार अगले फॉर्मूला में मैंने बताया था कि सिग्मा x स्क्वायर एंड सिग्मा x होल स्क्वायर ये दोनों अलग हैं. Both these are different. Both these are different. Similarly, summation x minus x bar the square and summation x minus x bar the whole square ये दोनों भी अलग है. तो देखिए यहाँ पे क्या है, इन आवर फॉर्मूला we are in need of summation x minus x bar the whole square. तो इसका मतलब क्या है? x minus x bar का पहले स्क्वायर निकालो, फिर उसका टोटल करो. So the square of -8 is 64, -4 का square it will be 16, 0 the square is 0, likewise 8 का square 64, and the total of this particular column will be useful in our formula. I'm going to use this particular, it is known as summation x minus x bar the whole square. Similarly, summation y minus y bar the whole square उस तरीके से निकालेंगे. And once we are having all these values with us, there will be need of this 3 values only. अगर आप सेकेंड फॉर्मूला से काम कर रहे हो तो ये 3 की जरूरत पड़ेगी, इन 3 वैल्यू की जरूरत पड़ेगी. ठीक है. नाउ लेट मी टेक यू टुवर्ड्स द फॉर्मूला. दिस इज द फॉर्मूला, इज इट? एंड वो सारी फॉर्मूलाज, वो सारी वैल्यूज मैंने पिछली स्लाइड में से निकाली, इज इट? सो द वैल्यू ऑफ r इज 0.986. वो तो कैलसी से करना है जो भी आ रहा है, ठीक है, बट ये हमको पहले से पता था. ऑब्जर्व, वी वर नोइंग दैट the value of r will be between 0 to 1.
वो हमने कंक्लूड कर लिया था बिकॉज बोथ दिस वेरिएबल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सो जो कोरिलेशन होगा वो पॉजिटिव ही होगा। Is it? और देख सकते हैं आप यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या है, 0.986। ना if one of you will try the similar question with the earlier formula, that sigma xy minus sigma x sigma y divided by n and divided by that both the terms in the denominator, अगर कोई ये फॉर्मूला से ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करे इस क्वेश्चन में, then the result will be same, result will be same, r is equals to 0.986 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Is it? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। Is it? So choice will be yours कि कैसे करना है, ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी है, ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी है। Is it? But अगर आप देखें when you are using this particular formula, तो जो टेबल बन रहा है, देखिए यहाँ पे जो टेबल बन रहा है उसमें अलग से आपको 5 कॉलम बनानी है। Is it? और पिछली वाली फॉर्मूला अगर आप यूज कर रहे हैं, तो अगर ये वाली फॉर्मूला यूज कर रहे हैं आप, देन यू विल बी जस्ट इन नीड ऑफ 3 कॉलम्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स इनटू वाई। ऐसे अगर आपका डेटा थोड़ा बड़ा है, बड़ा मतलब कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ हैविंग 5, इफ यू आर हैविंग ऑब्जर्वेशन लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ हैविंग 5 अगर आपका ऑब्जर्वेशन है 115, instead of 12, if you are dealing with the big number 126 like that, 2 digit 3 digit 4 digit numbers के साथ बात कर रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करना थोड़ा सुटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि हम उसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसका टोटल करेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका टोटल, तो ये सारा नंबर्स थोड़े बड़े होंगे। सो डू वी हैव एनी सच फैसिलिटी कि भाई क्या हम डेटा को चेंज करके भी आर निकाल सकते हैं? हाँ, वी आर हैविंग सम ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक। सो उसके ऊपर जाने से पहले पहले बताइए, क्या यहाँ तक हर कोई बच्चा जो भी अटेंड कर रहा है, हर एक बच्चा यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई डाउट है देन वी मे डिस्कस, लेट मी नो, आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स। इससे ये वाली स्क्रीन रखूँ, ये ज्यादा बेहतर है। Is it? Let me know on the chat box. All of us are good with this or not? All of you are supposed to drop, all of you are supposed to reply, acknowledge on the chat box. Clear, 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 no doubt. इतने ही बच्चे अटेंड कर रहे हैं, बाकी के कहाँ हैं? I need reply from all of you. Okay. मैं काम दिया था 2-3 लोगों को, 2 लोगों को, कि उसको कुछ याद करवाना है, ये वाली स्लाइड। I want to go through this. First, second, and third. These 3 are the properties of coefficient of correlation. Just go through it और बताइए क्या समझ में आ रहा है। सर ब्लिंक हो रही है स्क्रीन।
So the first property, the coefficient of correlation always lies between -1 and +1. ये हम सभी को पता है. Now the second one is important. Observe the second one, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं. That the correlation coefficient is independent from change of origin and change of scale of the data. Change of origin and change of scale of the data. This line is very, very important. इसको छोड़ दीजिए, अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो it's totally good, it's totally fine. Forget about this particular, छोड़ दो इसको. But the first line is very, very important. The coefficient of correlation, the correlation coefficient, is independent from change of origin and change of scale of the data. मतलब कि if you are going to change the origin of your data and then उस डेटा को आप मैनिपुलेट कर दे, फिर R निकाले, it will be ditto same. If you wish, then you may change the scale of your data. स्केल चेंज करके डेटा को पूरा बदल दीजिए, फिर R evaluate कीजिए, it will be ditto same. Is it? Now, first of all, let me know how many of you are good with कितनों को पता है what do we mean by change of origin of a data? What do we mean by change of origin of the data? डेटा का origin change करना मतलब क्या? डेटा का स्केल चेंज करना मतलब क्या? समझ है किसी को? हाँ या नहीं? Anyone knows that? Yes or no? Yes or no? Alice, you may reply yes or no. पता भी है किसी को? हाँ या ना? Am I audible properly? Sir, no idea. Okay. अब मान ले कि x और y जो कोई जो डेटा है हमारे पास, एक्चुअल डेटा, इट इज समथिंग लाइक दैट 1020 1050 1080 1099 like that, and respectively the data of y is quite bigger than that. 5230 5470, 5600, 5700, and randomly मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? Now, if this is your data, ऐसे काफी सारे ऐसे मान लीजिए, we are having 10 observations, अभी मैंने 4 ही लिखे, पर suppose ऐसे 10 डेटा सेट है, एक डेटा सेट है जिसमें 10 ऑब्जर्वेशन है सपोज. तो इसको देख के आप बताइए आप कौन सी वाली फॉर्मूला ऑप्ट करेंगे, फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, कौन सी? मैं जस्ट ये पूछ रहा हूं. हमारे पास आर के लिए 2 फॉर्मूला है, इज इट? फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, इज इट? सभी को याद है वो फॉर्मूला. अब इफ योर डेटा सेट इज लाइक दिस, देन व्हिच फॉर्मूला यू आर गोइंग टू अप्लाई, यू आर गोइंग टू पिक. कौन सी वाली फॉर्मूला आप पिक करेंगे, फर्स्ट वाली, सेकंड वाली? सभी को पता है अगर फर्स्ट वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी है तो वो क्या है, दैट इज जिसका न्यूमरेटर कुछ ऐसा होता है, सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार डिवाइड बाय समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर समेशन y माइनस y बार होल स्क्वायर पॉजिटिव स्क्वायर होता है. इज इट? सेकंड वाली फॉर्मूला कुछ ऐसी दिख रही थी, कुछ ऐसी दिख रही थी. इज इट? दिस इज द सेकंड फॉर्मूला. तो कौन से ऑप्ट करना है? अगर सेकंड वाली ऑप्ट करेंगे तो यू विल बी नीड ऑफ सिग्मा x स्क्वायर. तो मतलब कि इस x का स्क्वायर करेंगे आप कहीं ना कहीं. तो देखिए x में हर एक ऑब्जर्वेशन 4 डिजिट में, उसका स्क्वायर करेंगे काफी बड़ा नंबर आएगा, उसका टोटल उससे भी बड़ा होगा. इज इट? इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे आप कहीं ना कहीं सिग्मा, बिकॉज वी विल बी इन नीड ऑफ सिग्मा एक्स वाई. इज इट? सो नंबर्स बढ़ जाएंगे. ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, बट द प्रोसेस विल बी टीडियस, काइंड ऑफ टीडियस प्रोसेस. इज इट? सो द second property says that you may change the origin of your data. इस डेटा का अगर आप ओरिजिन चेंज करना चाहें ना तो कर सकते हैं. अब ओरिजिन चेंज करना मतलब क्या? व्हाट डू वी मीन बाय चेंज ऑफ ओरिजिन ऑफ द डेटा? डेटा का ओरिजिन चेंज करने का मतलब क्या है ये मैं बता रहा हूँ आपको. इफ यू विश टू चेंज, किसी ने मैसेज डाला क्या? लेट मी चेक इट. नहीं, कुछ और नोटिफिकेशन होगा, जाने दो. ओके, नाउ बाय चेंज ऑफ ओरिजिन व्हाट वी मीन. अब x देखिए 1020, 1050, 1080, 1090.
अगर मैं x को कुछ ऐसे कर दूं, x माइनस 1050, x माइनस 1050, x में से कोई एक, x के हर एक ऑब्जर्वेशन में से कोई, x वाली पूरी सीरीज में से, पूरी सीरीज के हर एक नंबर्स, हर एक ऑब्जर्वेशन में से मैं 150 को सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इफ आई एम गोना अप्लाई दिस x माइनस 1050, ये 1050 मैंने क्यों पिक किया, क्योंकि मुझे वो पसंद आया नंबर। इफ यू विश देन यू मे गो फॉर 1060, इफ यू विश देन यू मे गो फॉर 1070, एनी ऑफ द नंबर। इज इट अ पर्पस इज टू इस जो बड़े से ये जो डेटा दिख रहा है, जो जिसमें नंबर्स काफी बड़े, उसको छोटे बनाने। Now 1020 minus 1050 gives you minus 30. 1050 minus 1050 gives you 0. 1080 minus 1050 gives you 30. This will gives you 49. Likewise, is it? Similarly, you may change the scale of y. अब ये मैंने किया ना, तो मैंने क्या किया, I had changed the scale of x. ये मैंने किया, x का scale change किया, sorry, origin change किया, my mistake. I'm changing the origin right now. So, मतलब क्या हुआ origin change का, कोई एक फिक्स नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे, पूरे डेटा में से कोई एक फिक्स नंबर अगर आप ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और डेटा को चेंज कर रहे हो, then you may say that कि you are changing the origin of that data. कोई फिक्स नंबर ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट, देखिए मैं बोल रहा हूँ फिर से एक बार, ऐड भी कर सकते हो, फिर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, पर कंडीशन क्या है, हर एक ऑब्जर्वेशन में से वही नंबर या तो ऐड होना चाहिए या तो सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर ऐड कर रहे हो तो सभी में वो ऐड करो, अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सभी में वो सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। ऐसा करने से जो नया डेटा सेट मिलेगा, ये नया मेरा एक्स है, इसको मैं कुछ और नाम दे दूं, dx, कुछ भी और नाम दे सकते हैं, यू मे गिव दैट लेवल कैपिटल ए, कैपिटल बी, लाइक दैट। इज इट सिमिलरली y में से भी अगर मैं कोई एक फिक्स नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और नया y जनरेट कर रहा हूँ, नई सीरीज बना रहा हूँ, then I may say that I'm changing the origin of my y series. Is it? So origin change करने का मतलब ये सिंपल सा कोई फिक्स नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं पूरी सीरीज में से। And similarly, if you are looking to multiply or divide, if you are looking to multiply or divide a fixed number to the entire series of x or y, then you are actually changing the scale of that particular series. अगर कोई फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो पूरी सीरीज में से, मान लीजिए कि जैसे मैं x वाली सीरीज को 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ, आई एम डिवाइडिंग दैट एंटायर सीरीज बाय 1000, यहाँ पे मैं नया लिख लूंगा x डिवाइड बाय 1000, तो क्या आएगा ये, दिस विल बी 1.020, दिस विल बी 1.050, दिस विल बी 1.080, दिस विल बी 1.099। देखिए नंबर्स बहुत छोटे हो गए अब, इज इट? सो when you are multiplying or dividing with fixed number, you are actually changing the scale. When you are adding or subtracting a fixed number, you are changing the origin of the data. Are we good? अब आपको सेकेंड वाली बात समझ में आएगी, सेकेंड प्रॉपर्टी, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब कि यार is independent from both others, independent from change of origin, change of scale। मानिए कि डेटा को आप छोटा बना दो, बड़ा बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके आर पे। आर मानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आप डेटा चाहे बड़ा है उसको छोटा बना के फिर आर कैलकुलेट करें, वही वैल्यू मिलेगी जो एक्चुअल डेटा से मिल रही है, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ ओरिजिन एज वेल एज चेंज ऑफ स्केल। आर वी गुड विद दिस? आर वी गुड विद दिस? ये बात समझ में आई? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, पार्थ इज सेइंग करेक्ट, shifting whole axis to the new point of origin h comma k. Yes, correct, exactly correct. कितनों को ये बात समझ में आ रही है? This is very very important. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के साथ काम करना बहुत ही आसान है। So नंबर ऑफ क्वेश्चन आप 5 कर रहे हो, 10 कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको बस समझ में आनी चाहिए प्रोसेस। Is it? Okay. And the last property is like that. Two independent variables are uncorrelated. टू वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब कि इफ आई एम गोना कंसीडर वन ऑफ द वेरिएबल एज माय हाइट एंड सेकंड वेरिएबल एज योर वेट,
मेरी हाइट तेरा वेट, x को मैं ले रहा हूं मेरी हाइट, y को मैं ले रहा हूं तेरा वेट, मैं फॉर्मूला में डालूंगा, फिक्स है, मिलेगा आपकी कुछ वैल्यू तो मिलेगी, पर दैट इज सेंसलेस, उसका कोई मतलब ही नहीं, कोई उसका कोई मतलब निकलेगा ही नहीं। पर ऐसे कोई दो डेटा है जो इंडिपेंडेंट है, तो उसके लिए अगर r को कैलकुलेट कर रहे हो तो 0 मिल सकता है। पर दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का रिवर्स करेक्ट नहीं है। इफ x and y are independent variable, they are uncorrelated. The converse of the above property is not true. That means two uncorrelated variables may not be independent. Two uncorrelated variables may not be independent. ऐसा हो सकता है कि दो वेरिएबल जो कि कोरिलेटेड नहीं है वो इंडिपेंडेंट ना भी, उसके लिए आप फाइंड करने जाए 0 ना भी मिले, ठीक है, जिसके लिए अभी मैंने बात की, my height and your weight, is it? So these are the three properties. Let me erase all the ink from the slide. This is very very important, और इसके ऊपर से कम 3-4 MCQs सेट कर सकता हूँ फाइनल एग्जाम के लिए, 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन भी डाल सकता हूँ। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको याद रखना है। अब 1-2 हो चुका है, हर क्वेश्चन पे जाते हैं। एग्जाम्पल 3, calculate the coefficient of correlation for the following pair of x and y. For the following pair of x and y. Observe. अब यहां पे मैं यूज करूंगा चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल। एक बार दिखा दूं, देखिए एक बार मैं क्या कर रहा हूं। देखिए x और y जो मेरे पास है ना, x वाली पूरी सीरीज में से मैं 23 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। क्यों 23? If this is your question, if this is the question in your mind कि सर 23 क्यों सब्ट्रैक्ट करो, that is my choice. आप instead of 23 you may go for 24, instead of 24 you may go for 25, is it? कोई भी नंबर्स ले सकते हैं आप, पर कंडीशन क्या है, जो भी नंबर आपने फिक्स किया वो इस x वाली सीरीज के हर एक ऑब्जर्वेशन में से सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। अभी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 23 हर एक में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो x और y जो एक्चुअल डेटा है ना हमारे पास, उसको मैनिपुलेट कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे, उसको पूरा बदल देंगे और फिर आर कैलकुलेट करेंगे। वो जो आर मिलेगा वही आर की वैल्यू सेम इसी डेटा के लिए भी है। रीजन क्या है? वी आर हैविंग वन ऑफ द प्रॉपर्टी दैट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज फ्री फ्रॉम, इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल ऑफ द डेटा, इज इट? सो x वाली सीरीज में से मैं 23 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, y वाली सीरीज में से मैं 27 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और फिर देखिए instead of using both this data set, I'm preparing a new data set. ये दो नए data set बन गए मेरे। देखिए, now I'm gonna consider this as a x, this is a y, और वही वाली फॉर्मूला अप्लाई करूंगा फिर से। फर्स्ट सेकेंड वाली फॉर्मूला क्या थी? will be need of x square, will be need of y square and will be need of xy, is it? So देखिए यहाँ पे मैंने नए नोटेशन यूज की है, dx dy, so that is the reason the level of this particular column is dx the square, level of this particular column is dy the square and level of this column is dx dy. बस और कोई फर्क नहीं है, और कोई फर्क नहीं है, is it? So it is not compulsory for you guys, आपके लिए ये कंपलसरी नहीं है कि आप इसको इसका ओरिजिन और स्केल चेंज करके ही काम करें ना भाई, ऐसे कोई कंडीशन नहीं है। You may deal with the actual data, क्योंकि आपको तो कैलसी यूज करना है, is it? क्या फर्क पड़ेगा आपको 28 का स्क्वायर निकाल रहे हो या फिर 5 का स्क्वायर निकाल रहे हो, उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है, because you are having calci with you even when you are practicing, and जब आप एग्जाम में तो भी वो कैलसी अलाउड है। पर आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए, is it? कि अगर हम चेंज करें उसका ओरिजिन तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, is it? So this question, ये वाला क्वेश्चन मैंने ओरिजिन चेंज करके सॉल्व किया हुआ है। देखिए फॉर्मूला वही है, अगर आप कंपेयर करें तो फॉर्मूला बिल्कुल वही है। फॉर्मूला हमारे पास कुछ ऐसी थी, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाय एन होल डिवाइड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, एंड सिमिलर टर्म विद द वाई वाला वही टर्म। देखिए अब इसको कंपेयर कीजिए, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों एक ही है। Earlier we were using x and y, now I am labeling dx dy, क्यों? क्योंकि भाई मैंने डेटा चेंज किया हुआ, मैंने उसका ओरिजिन चेंज किया हुआ, ठीक है। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई यहाँ पे था, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई यहाँ पे मैंने लिखा है सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई, क्योंकि वो नया डेटा जो हमने ओरिजिन चेंज करके लिया उसकी बात हो रही है, is it? So respectively if you are gonna change your origin of the data, then फॉर्मूला इस तरीके से आपको लिखनी चाहिए आइडियली, एंड
देन प्रोसेस तो पूरी सेम है प्रोसेस, और आर की वैल्यू 0.515 मिल रही है मुझे आफ्टर चेंजिंग द ओरिजिन। अगर ओरिजिन चेंज ना करूं, इसी फॉर्मूला से काम करूं, तो भी अगर ओरिजिन चेंज किए बिना मैंने अगर इसी फॉर्मूला को अप्लाई किया होता डायरेक्टली, तो भी मुझे आर की वैल्यू 515 ही मिलती, 0.515 ही मिलती। इज इट? सो होपफुली वी आर गुड, वी आर क्लियर ऑन दिस, होपफुली। इज इट? यस और नो? Reply on the chat box. You should acknowledge. So now it's already 11:41. Let me stop the recording. First of all, we will continue from here after the break of